एक्सरसाइज 12C, ठीक है, वेरी सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट. इट इज बेस्ड ऑन द पेरीमीटर एंड एरिया, नथिंग टू वरी. जस्ट look at the question and it will be solved like a very simple question is this. Look at the flowing dot grid in which the consecutive dots are 1 unit apart. What is the meaning of consecutive? Its meaning is continuous, लगातार. Dots are 1 unit apart. A rectangle has been drawn on the grid. Draw at least 3 cutouts. Okay, draw at least 3 cutouts figure of this rectangle which have the same perimeter as given in the rectangle. Okay, we have a dot structure and the unit is already defined 1 unit apart. So what is the length of this? It is a 1 unit. So similarly this is also 1 unit, it is also 1 unit, it is also 1, it is also 1. So how much this is? 1, 2, 3, 4, 5. So this is our 5 unit length. What is this? Total is our 5 unit length. Okay, similarly what is this? It is our 1, it is also 1, it is also 1. So what is the total length? It is our what? 1 plus 1 plus 1, 3. It is a 3 unit. For these conditions, what is the perimeter? First, the perimeter of the, what I am doing? Yes, the perimeter of given dot structure. It is dot structure equal to, sir, how much? It is, sir, the graph of rectangle, so it will become, sir, 2 into 5 plus 3 equal to 2 into 5 plus 3 8, that is equal to how much, sir? 16 unit. It is given. What is the perimeter? It is, sir, 16 unit perimeter is this. Yes, सर RD शर्मा का भी करवा देना प्लीज. ओके रखो, डायग्राम बेस्ट करा दिया जाएगा, डोंट वरी. सर सिलेबस आपने कंप्लीट करा दिया है अनन्या. ओके अनन्या, वेरी गुड. जो डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा, सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुका है. हाँ जी, आद्विक सर ये मेरे स्कूल में हुआ था आज. बहुत बढ़िया आद्विक. राघव जरूर करा देंगे बाबू, डोंट वरी, ठीक है, जरूर करा देंगे, एकदम करा देंगे. अब यहाँ देखिए, हमको सर ये मिल चुका है सर हमारा जिसका डायग्राम का पैरामीटर कितना है सर? 16 यूनिट है. अब करना क्या है? अब ध्यान देखो, व्हाट टू डू. आपको करना है सर ड्रॉ एटलीस्ट 3 कटआउट ऑफ फिगर. 3 कटआउट इस फिगर का, ठीक है, ऑफ दिस रेक्टेंगल विच हैव द सेम पैरामीटर एज गिवन इन द रेक्टेंगल. सर हमको चाहिए 3 कटआउट. जैसे ये है ना कटआउट, ऐसे आप कट कर लोगे तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा. आपको इस तरह से सर करना है, ड्रॉ करना है 3 कटआउट. इस तरह से आपको ड्रॉ करना है 3 कटआउट ऑफ द फिगर ऑफ दिस रेक्टेंगल. ठीक है सर, इस रेक्टेंगल का फिगर ड्रॉ करना है विच हैव द सेम पैरामीटर. अब देखो सेम पैरामीटर के लिए क्या क्या लॉजिक क्रिएट हो सकता है. तो अगर हम एक बात करें, अगर फर्स्ट का बात करें, फर्स्ट क्या है तुम्हारा? ये कटआउट है ना. तो अगर फर्स्ट कटआउट का अगर बात करें तो सर हमको चाहिए सर 18 यूनिट सर क्या पैरीमीटर. व्हाट कैन वी डू? just try to make it 8 so that it will become 2 into 8 how much sir? 18. So 2 into 8 sir how much? It is becomes sir 16. 2 into 8 sir 16, sorry, a 16 होगा तुम्हारा. ओके डन. अगर सर सेकेंड कटआउट का बात करें, हम लोग सेकेंड कट आउट का बात करें तो क्या हो सकता है सर? इट इज सर व्हाट? इट इज सर 5/3. सो वी कैन थिंक सर, वी कैन थिंक 3/5. just we can make it 2 into 3 plus 5. This is equal to how, what sir? 2 into 3 plus 5 sir become 8. So it will become sir 16 unit. What I have done, I have just rotate the diagram. Next what can be done sir? चलिए what can be done? This can be also be done sir. 6 plus 2 8 होता है. तो सर 2 into 2 plus 6 it is also possible, absolutely possible sir. So it will become how much? 2 into 2 plus 6 sir becomes sir 8 16 unit. So there are many possibility through which we can rotate the diagram or we can set the diagram. चलो कुछ diagram बना के हम खुद दिखाते हैं. What I am saying, just try to make it, just collect the 1 unit, it will become 1 unit. Now collect the 7 unit. 1 2 3 4 5 6 7. It is becomes sir how much sir? 1 2 3 4 5 6 7. Yes. So this is the diagram. This is the diagram and it is perfectly sir rectangle. Do you think it is rectangle? Yes sir, absolutely it is rectangle sir. But if you think like this sir, if you make 3/5,
So what is the possibility? Just make it 1, 2, 3 and make it 5. 1, 2, 3, 4, 5. So absolutely sir, this is also a rectangle. It is also a same perimeter. Okay, next sir, what is the possibility? Just draw a 2, 6. It is sir 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and just join it. We get sir 2, 6. 2, 6 unit. It is sir 3, 5 unit. It is sir 1, 7 unit. So it all has the same perimeter which is equal to sir 16 unit. Is there any problem? Parv Gupta sir, PA2 syllabus chapter number 6 integer fraction and constructions. Okay, we have discussed the chapter that is sir integer. We will now discuss that concept that is sir fraction also. Fraction is very important topic. हाँ जी, पहले यहाँ बताएं आप लोग, इज देयर एनी प्रॉब्लम और एनी कंफ्यूजन? जल्दी जल्दी आंसर देने का, क्या कोई तकलीफ है ऐसे सवालों में? हम साइड हो जाते थोड़ा सा। हाँ जी, क्या ये समझ में आया आप लोग को? तो फिगर कट आउट करके सर पैरामीटर को सेम कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, सब कोई फटाफट से। भूमि सर, आज के लिए इतना बहुत हुआ। नहीं भूमि, अभी समय 9 मिनट बाकी है। अनन्या नो सर, नो प्रॉब्लम। आदिक नो प्रॉब्लम सर। आदिक रंजन, हाँ सर, क्या प्रॉब्लम है आदिक रंजन? कोई प्रॉब्लम? पहले बोलता नो प्रॉब्लम सर। हाँ सर, क्या प्रॉब्लम बताओ जल्दी से। भूमि, टाइम से पहले छुट्टी नहीं होगा। हाँ अच्छा, दृष्टि बोल रही है सर 2, 4 + 4। बाबू 4 + 4 आपका स्क्वायर भी बन सकता है ना? दृष्टि सोचो इस बात को थोड़ा सा। 4 + 4 करेंगे, लेंथ वेथ 4 का बराबर हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना सर। थोड़ा सा साइड हो जाइए ना, दिखाई नहीं दे रहा है। लो साइड हो गए। दृष्टि फिर 4 से 4 आ गई तुम? हाँ दृष्टि, 4 + 4 अगर लेंथ वेथ रखिएगा 4 4। दृष्टि ये बोलना चाह रही है कि सर 4 4 का कर लीजिए ना। तो चलो 4 4 तुम्हारा बात मान के हम कर लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। So what it becomes sir? What it becomes sir? It is becomes sir square. It is not rectangle. हाँ दृष्टि, बात समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे थे? इट इज स्क्वायर, इट इज क्वेश्चन इज सर रेक्टेंगल। ठीक है, तो गलती नहीं करना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। हाँ जी, सबसे आसान कुछ दुनिया में है ना, तो ये सवाल है। इससे आसान कुछ नहीं है दुनिया में, बट कोई बात नहीं। अरे फिगर क्या कहना चाहता है, बस फिगर को समझेंगे और तोड़ देंगे, बस इतना ही काम करना है। देखो ध्यान से, क्या कहना चाहते हो क्वेश्चन पर, ये बताओ। क्वेश्चन ये है कि राइट द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोइंग फिगर इन द टर्म ऑफ स्ट्रेट यूनिट को एस बोलेंगे, अच्छा जी, एंड डायगोनल यूनिट को डी बोलेंगे। पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है सर? पेरीमीटर बताना है। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री। मतलब क्या हुआ, इस वाले फिगर में जो स्ट्रेट लाइन है उसको आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको सर ये वाला स्ट्रेट दिख रहा है तो ये हमारा एस हो गया, ये हमारा स्ट्रेट है तो एस हो गया। सर ये हमारा स्ट्रेट नहीं है, डायगोनली है, मतलब तिरछा है, तिरछा एकदम सीधा, और ऐसे में फर्क होता है ना सर? देखो जैसे इट इज कॉल्ड स्ट्रेट, इट इज कॉल्ड सर डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल बोलेंगे। बात समझ में आया बबुआ? इट इज कॉल्ड स्ट्रेट, इसको क्या बोलेंगे सर? हम लोग डायगोनल बोलेंगे। आया समझ में? कुछ तो समझ में आया होगा। यस, तो डायगोनल बहुत आसान था। स्ट्रेट स्ट्रेट ये क्या है तुम्हारा? बताओ जल्दी से। सर ये डायगोनल है। डायगोनल क्या लिखना है सर? डी लिखना है। डायगोनल को डी लिखना है। ये बताओ स्ट्रेट है कि डायगोनल है? बताओ, तिरछा है या सीधा है? सर स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। ये वाला भी स्ट्रेट है। सर ये क्या है सर? स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। स्ट्रेट है, सीधा है, ये सीधा है, सीधा, तिरछा नहीं है। ये बताओ कैसा है? तिरछा है ना, डी होगा। ये कैसा होगा सर? डी होगा। अब बताओ यहाँ पर ये स्ट्रेट है सर, स्ट्रेट है सर, स्ट्रेट है सर, स्ट्रेट है। चलो इस काउंट करो कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या होगा सर? 10 टाइम्स ए स्क्वायर करोगे तो सर होगा 10s प्लस डी कितना है सर? 1 2 3 4, तो कितना होगा प्लस का? 4d। हाँ जी, कोई तकलीफ किसी को है तो बताइए। फर्स्ट आंसर तो आ चुका सर, 10s प्लस का 4d। हाँ जी। करण बोल रहा है सर समझ में नहीं आया। पर्व कौन सा समझ में नहीं आया? पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? पर्व 6d, 6d होगा यहाँ पर। 6d कैसे आ गया जी? हाँ कौन बचा है जी? पर्व, पर्व क्या समझ में नहीं आया जल्दी बता पहले। फर्स्ट का सर 10 + 6d। ए आदिक रंजन 6d कैसे होगा जी? हाउ यू आर मेकिंग दिस 6d? डी तो हमारे पास सर 4 ही है। दिस क्वेश्चन, अच्छा अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है, अभी खत्म कहाँ हुआ है? अभी खत्म कहाँ हुआ है? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
बताओ। डायगोनल 6 है। हैं? हाउ? डायगोनल 6 कहाँ दिख रहा है बाबू? वेर द 6 डायगोनल? आद्विक रंजन, ए आद्विक रंजन, कहाँ से आंसर दिख रहा है? देखो स्ट्रेट जो है ना, देखो एवरीवन, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना डायग्राम, इस डायग्राम के अनुसार से अगर कुछ ऐसे ज्वाइन हो रहा है इसको बोलेंगे स्ट्रेट, अगर कुछ ऐसे ज्वाइन इसको बोलेंगे स्ट्रेट, अगर कुछ ऐसे ज्वाइन इसको बोलेंगे स्ट्रेट, इसको भी बोलेंगे स्ट्रेट। लेकिन अगर कुछ तिरछा चल रहा है ना ऐसे, इसको बोलेंगे डायगोनल। इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे। अब बताओ, अगर कुछ ऐसे ज्वाइन तो क्या बोलेंगे? इसको डायगोनल बोलेंगे। अगर कुछ ऐसे ज्वाइन तो क्या बोलेंगे? इसको डायगोनल बोलेंगे। डायगोनल तो हो गया। एक इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको क्या बोलेंगे? बोलिए स्ट्रेट बोलेंगे। तो ऐसे आपको समझना है सर, ये क्या हम लोग का डायगोनल है, ये क्या हम लोग का डायगोनल है, ये क्या स्ट्रेट है, ये क्या स्ट्रेट है। तो बस आप पहचानो चीज़ों को, है ना, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, आप पहचानो चीज़ों को। देखो यहाँ पर ए एस बनेगा ना, ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में है एस, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है। ये तिरछा है, तिरछा है सर, तो इसको डी बोलेंगे। ये तिरछा है, डी बोलेंगे। ये हमारा स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। ये तिरछा है, ये तिरछा है, तो 10s प्लस का 4d होगा फर्स्ट सर। हाँ 10s प्लस का 4d, प्रियांशु पाल ने कंफर्म कर दिया, बहुत बढ़िया प्रियांशु, वेरी गुड। आ जाओ बाबू, कम टू दिस क्वेश्चन। सर स्ट्रेट तो सीधा, मतलब सर अगर कुछ ऐसा है तो स्ट्रेट बोलेंगे, अगर कुछ ऐसा है तो स्ट्रेट बोलेंगे। तो उसको देखते हुए सर ये स्ट्रेट है सर, ये भी 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 स्ट्रेट है, लेकिन ये तिरछा है, इसको डी बोलेंगे। तिरछा को बोलेंगे डी। ये स्ट्रेट है सर, ये तिरछा है, डी बोलेंगे। ये तिरछा है, डी बोलेंगे। ये तिरछा है, डी बोलेंगे। कलेक्ट और एस एंड डी। एस कितना है सर? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 6, तो कितना है सर हमारा? 6 एस है। हाउ मच इट इज सर? इट इज सर 6 एस है। 1 2 3 4 5 6, 6 एस प्लस डी कितना है? व्हाट इज डी? 1 2 3 4 5, इट इज सर 5d। चलिए जी, ये आपका आंसर आ चुका, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए अब। अरे वाह, ये तो भाई क्रिसमस ट्री है, मजा आ जाएगा इसको बनाने में, है ना। स्ट्रेट है बाबू, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। क्या बात है। ये डायगोनल है सर, ये डायगोनल है हम लोग का, ये डायगोनल है, तिरछा वाला डायगोनल है, डायगोनल है, डायगोनल है। काउंट कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट इज सर 10s प्लस हाउ मच? डायगोनल कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा 6d है। ये आपका थर्ड का आंसर आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रेट एंड डायगोनल। सर ये स्ट्रेट है, एस होगा, स्ट्रेट है, एस होगा, स्ट्रेट है, एस होगा, स्ट्रेट है, एस है, 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 एस है। ये भी स्ट्रेट है सर, एस, ए भी एस, ए भी एस। उसके अलावा ये सब तिरछा में आएगा। ये हम लोग का डायगोनल है डी, डायगोनल है डी, डायगोनल है डी। तिरछा देखना ना बाबू, डायगोनल है डी, डायगोनल है डी, डायगोनल डी हो गया। ये डायगोनल है सर, डी हो गया। अरे वाह कितना अच्छा है, डायगोनल डी हो गया। बताओ कितना आंसर आएगा? एस आपको जोड़ ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12s प्लस हाउ मच? डी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8d। हाँ जी, बोलिए आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नव्या शर्मा, 8d, बहुत बढ़िया।